Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 8th air. So in this chapter we shall learn about the what is air and what are the properties of air, or how can we feel air, what are the characteristics of the air, and how can we purify our air and protect us from being polluted. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 8th air. Get start for the exercise. Look at these pictures. Tick right those that need air to live. Now students look at the images and identify those images which need air to live. Now first image is a cat. But your cat is a living thing, so it also needed air to live. So tick the image. Next is tire. Tire doesn't need air to live. Next is kite. Kite doesn't need air to live. Next is ant. Ant needed air to live. So take the image. Balloons doesn't need air to live. Next is plants. Plants need air to live. Plants भी बच्चों एयर के थ्रू सांस लेते हैं, तो प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है. So tick the image. Now let's read the chapter. Air is everywhere. All living things all living beings need air to live. Without air, all living things will die. We cannot see air but can feel it when it moves. बच्चों हवा हर तरफ होती है. लिविंग बींग्स को हवा की जरूरत होती है जिंदा लिव करने के लिए. बच्चों हवा के बिना जो सारे लिविंग थिंग्स है ना वो डाई होने स्टार्ट हो जाएंगे. हम हवा को देख नहीं सकते बल्कि हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वो मूव करती है. Now, let's see properties of air. First one is air take up space. Air take up space and gives shape to things. When you blow air into a balloon, it grows up bigger as the air fills the space inside it. Thus, it gives shape to the balloon. Now, students, look at the figure. हमें अब समझा रखा है एयर जो होती है स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आपने एक बलून लिया, फिर उसमें आपने ब्लो करी एयर को. आप देखेंगे जैसे एयर उसके अंदर जानी स्टार्ट होती है तो आपका बलून जो होता है बिगर साइज का होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब एयर पार्टिकल्स ने अपने स्पेस लेने स्टार्ट कर दिए. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट. टेक अ स्टिक, tie an air-filled balloon on one side and a fluid balloon on the other side. Hold the stick from the middle. What do you observe? Yes, the air-filled balloon is heavier than the flat balloon. Now students look at the image. आपको एक स्टिक लेनी है और आपने एक एयर फिल्ड बलून टाई करना है और एक तरफ आपने फ्लैट बलून टाई करना है. तो आप देखेंगे जो आपका एयर फिल्ड बलून है वो डाउनवर्ड चला जाएगा और आपका फ्लैट बलून है जिसमें हवा नहीं है वो अपवर्ड चला जाएगा. जो हमारी भारी चीज होती है वो नीचे आ जाती है. तो बच्चों आपने क्या देखा कि एयर में क्या है, वेट है, तभी तो जो एयर फिल्ड बलून है वो नीचे चला गया हैवी वेट की वजह से, और जो आपका फ्लैट बलून था जिसमें एयर नहीं थी वो ऊपर चला गया. नाउ next property is air helps in burning. Take a candle, light it and fix it. On a table, put a glass or jar over it. To cover the candle, observe what happens. The candle blows off after some time because there is no air left inside the glass or jar. This shows that air helps in burning. Now students look at the image. आपको एक कैंडल लेनी है, दोनों को ही लाइट अप कर देंगे कैंडल को और दोनों ही कैंडल को आप फिक्स कर देंगे अपने टेबल पे. फिर आपको एक ग्लास या जार लेना है जो उस कैंडल को, एक कैंडल को कवर करना है. फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिस जार से आपने जिस कैंडल को कवर करा था वो थोड़ी के समय के बाद क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी कैंडल. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसकी एयर की फ्लो को कट कर दिया. जो वो जब तक ही जली जब तक उसमें ग्लास के अंदर एयर प्रेजेंस था. जब एयर प्रेजेंस सारा खत्म हो गया तो वो बर्निंग होना स्टार्ट से स्टॉप पे आ गई, तो फिर हमारी कैंडल क्या है, बुझ गई. तो मतलब कि हमने उसकी एयर सप्लाई को रोक दिया और जिसको एयर मिल रही थी वो बंद कर रही थी कैंडल. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन इमेज. नाउ डू become pajam. Let's do an exercise. Write yes or no. We can see air. क्या हम एयर को देख सकते हैं? No. But it can only feel. So no right here. Air has no weight. एयर का वेट नहीं होता, ये तो गलत है. No. Air take up space. एयर स्पेस लेती है. Yes. Fish breathe through gills. फिश जो होती है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. Yes.
Now students, let's see another topic, different forms of air. Air has different forms. Moving air is called wind. When wind moves gently, it is called a breeze. When it blows very hard, it is called a storm. A storm is so powerful that it can even uproot trees. एयर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. जब हवा चलती है हम उसे कहते हैं विंड. बच्चों जब हवा जो होती है हमें अच्छी लगती है, जेंटली फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं ब्रीज. जब हवा तेज से चलती है, बहुत तेज चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म यानी तूफान आना. स्टॉर्म जो होता है बहुत पावरफुल होता है, जिससे ट्रीज जो होते हैं अपरूट हो जाता है, मतलब वो डैमेज हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. एयर हेल्प्स टू प्ले अ फ्लूट. आपको पता है जो फ्लूट होता है वो कैसे प्ले होता है, एयर की हेल्प से होता है. जैसे हम एयर उसमें ब्लो करते हैं वैसे फ्लूट्स में से साउंड आती है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन इमेज ऑफ ब्रीज एंड स्टॉर्म. Now next is uses of air. Besides being alive, giving aliment for living beings, air is useful to us in many ways. Some uses are as follows. बच्चों हम ये सोचते हैं एयर सिर्फ हमारे लिविंग एलिमेंट्स के लिए ज़रूरी होती है जो उन्हें लाइफ देती है, बट एयर और भी तरीके से हमारे लिए यूजफुल होती है. नाउ लुक एट दी फर्स्ट इमेज. इट हेल्प्स बर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट्स टू फ्लाई. आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं या कोई भी एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन, वो एयर में ही तो फ्लाई कर पाते हैं. नेक्स्ट, इट हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई. हवा की वजह से तो आपके कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं. इट हेल्प्स बोट्स टू सेल. जो शिप बोट्स होती हैं वो सेल हो पाती हैं एयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. इट मूव्स द विंड मिल. बच्चों विंड मिल जो होती है एयर के थ्रू ही मूव करती है. इट हेल्प्स द ग्लाइडर्स टू मूव. जो ग्लाइडर्स होते हैं वो एयर की वजह से ही मूव होते हैं. डेट शोन इन द इमेज. नेक्स्ट, इट मेक्स द पैराशूट्स फ्लाई. बच्चों पैराशूट्स भी एयर की वजह से ही फ्लाई होते हैं. नाउ इट इज यूज्ड टू फिल बलून्स, फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब्स, टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. आप सभी को पता है एयर का यूज बलून्स को फिलअप करने में, फुटबॉल को, स्विमिंग ट्यूब्स को, व्हीकल्स टायर्स को और भी चीज़ों में हवा फिल की जाती है. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट फ्रेश एयर. बच्चों में फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दी ट्रीज. ट्रीज से हमें फ्रेश प्यूरिफाई एयर मिलती है डेट वी ब्रीथ. नाउ लुक दी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज विंड. दैट डिफाइंस मूविंग एयर. जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं विंड. ब्रीज मीन्स वेरी स्लो मूविंग विंड्स. जो धीरे धीरे हवा चलती है जो अच्छी होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं. स्टॉर्म मीन्स वेरी फास्ट मूविंग एयर. जो बहुत तेज हवा चलती है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं यानी तूफान. ग्लाइडर मीन्स अ लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन. बच्चों ग्लाइडर एक लाइट हल्का एयरक्राफ्ट होता है जो बिना इंजन के फ्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ द एयर. नेक्स्ट, विंडमिल मीन्स अ मशीन दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड. विंडमिल एक मशीन होती है जो हवा से चलती है और वो विंड एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है. नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, एयर इज एवरीवेयर. हमने अपने चैप्टर में समझा हवा हर तरफ है. एयर टेक अप स्पेस एंड गिव शेप्स टू थिंग्स. एयर अपना स्पेस लेती है और थिंग्स को शेप प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक बलून. व्हेन एयर ब्लोज वेरी हार्ड इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम स्टॉर्म यानी तूफान कहते हैं. एयर मूव्स द विंडमिल. हवा की वजह से ही तो विंडमिल मूव करती है. एयर हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई. एयर की वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं स्काई में. एयर हेल्प्स द पैराशूट्स टू फ्लाई. एयर की वजह से ही पैराशूट्स फ्लाई करते हैं. Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now read the statement and choose the correct one. Living beings cannot live without. Living beings किसके बिना नहीं रह सकते बच्चों? एयर के बिना. B is the right one. You can feel the presence of air when it. बच्चों आप एयर को कम महसूस कर सकते हैं जब एयर मूव करती है. C is the right answer. Air has this property. एयर की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वेट, कलर या स्मेल? वेट होता है उसमें. इज द राइट आंसर. अ स्टॉर्म कैन इवन अपरूट. स्टॉर्म की वजह से क्या अपरूट्स हो जाते हैं? ट्रीज. इज द राइट आंसर. एयर इज यूज टू फिल. एयर किस में फिल की जाती है बच्चों? फुटबॉल्स में, बलून्स में. सो सी बोथ ए एंड बी इज द राइट वन. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमें क्या करना है? फिल अप द ब्लैंक स्पेस. फर्स्ट वन, Air is all dash us. Air कहाँ है? Air is all around us. हर तरफ एयर.
एयर डैश स्पेस एंड गिव्स डैश टू थिंग्स। एयर क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड गिव्स शेप टू थिंग्स। The air-filled balloon is dash than the dash balloon. The air-filled balloon is heavier. भारी होता है वो क्योंकि एयर में वेट होता है। Heavier than the flat balloon. Moving air is called, moving air को हम क्या कहते हैं? Wind. Gently moving wind is called, उसे हम क्या कहेंगे? Breeze. Now students, let's do exercise C. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करके ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, नो इट इज फॉल्स। अ स्टॉर्म कैन इवन अपरूट ट्रीज, यस इट इज ट्रू। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज मेक द एयर डर्टी। बच्चों जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है उसकी वजह से हवा खराब हो जाती है, यस इट इज ट्रू। एयर इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट फॉर ऑल थिंग्स। इन्होंने कहा है कि एयर जो है लाइफ गिविंग एलिमेंट है सारी थिंग्स के लिए। नो बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत नहीं होती, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एयर इज नॉट हेल्पफुल फॉर क्लोथ्स टू ड्राई। एयर जो होती है कपड़ों को सुखाने में मदद नहीं करती, ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज डी। मैच दी कॉलम्स। कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मैच करना है। नाउ फर्स्ट वन इज एयर। बच्चों एयर हर तरफ है, ऑल अराउंड अस। फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। बलून, बच्चों बलून जो होते हैं वो क्या करते हैं? एयर टेक अप स्पेस। जैसे हम बलून में एयर फिलअप करेंगे तो एयर अपने स्पेस को लेना स्टार्ट करेगी और उसे शेप प्रोवाइड करेगी। तो सेकंड को मैच करेंगे सी से। विंड क्या होती है बच्चों? मूविंग एयर, उसे हम विंड कहते हैं। थर्ड को मैच करेंगे ए से। स्टॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ को मैच करेंगे बी से। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.